students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Unit 2, our world, living and non-living things. Stepping up, characteristics of living things, difference between living and non-living things. So children, in this chapter we are going to discuss about the characteristics of living thing and what is the difference between living and non-living things. तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या अंतर होता है. थिंग्स अराउंड अस, वी सी मैनी पीपल अराउंड अस. We also see different houses, plants, animals, car, etc. Among all these, some are living things and some are non-living things. Plants, animals and human beings are living things, whereas buildings, car, furniture, the sun and mountains are non-living things. Buildings, cars, furniture, etc. are made by humans, so they are called man-made things. The sun, the moon, mountains, etc. are called natural things, as these are the parts of nature. So children, we have learned in the previous class that we see so many things around us. Some are living things and some are non-living things. Like we, plants, animals, birds are living things, and chair, table, car, these things are non-living things. Chair, table, car, these things are made by men, so these are called man-made things. And the sun, the moon, the star, river, mountains, these are given us by nature, so these are natural things. तो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ इसमें से लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ इसमें से नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हम ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि कार हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, बुक्स हो गई, ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं. अब इनमें से भी नॉन लिविंग थिंग्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैन मेड है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें नेचर से मिली है. जैसे अभी हमने बात की कार, टेबल, चेयर के बारे में, ये मैन मेड थिंग्स है. और नेचुरल थिंग कौन कौन सी है? सन, मून, स्टार, एक्सेट्रा. एंगेज, take the correct option. First, which of the following is a man-made thing? Building, plants, animals. So children, you have to tell among these options which is man-made thing. So the plants and animals are natural thing. So which is left? Building. Building is a man-made thing. So you will take the building. Second, which of the following is a natural thing? Furniture, the sun, the car. So the furniture and car are man-made thing. So the sun is a natural thing. You will take the sun. आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से आपको बताना है कि मैन-मेड थिंग कौन सी है. तो आप देख पा रहे हैं बिल्डिंग, प्लांट एंड एनिमल. तो आप किसे आप मैन-मेड थिंग मानेंगे? वो है बिल्डिंग. तो आप बिल्डिंग पे टिक करेंगे. फिर सेकंड में आपको बताना है कि इनमें से नेचुरल थिंग कौन सी है. तो जो सन है वो नेचुरल थिंग है, तो आप इसे टिक करेंगे. ऑल थिंग्स अराउंड अस, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. Although living things may look different, they all carry out some similar processes. We call these life processes or characteristics of living things. So living things looks different from each other, but they have similar characteristics. Living things जो होती हैं वो एक दूसरे से दिखने में क्या होती हैं? अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सेम होती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. लाइक फर्स्ट, दे मूव. लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, कैट्स, डॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स वॉक्स. बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम एंड स्नेक्स crawl. So the first characteristics is the living things are moving elements. They move on their own, like humans move their own, cats and dogs are moving on their own, birds they fly from one place to another place, fish swim and snakes crawl. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये है लिविंग थिंग्स की, ये क्या करते हैं? मूव करते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स वॉक करते हैं, बर्ड्स जो है फ्लाई करती हैं, कैट्स एंड डॉग्स ये क्या करते हैं? ये भी मूव करते हैं, चलते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्या हुई?
कि ये खुद से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. Plants do not move from one place to another but show some other movements. For example, the lotus flower opens at sunrise and closes at night, and the sunflower always faces the sun. Mostly roots grow downwards and stems grow upwards. In plants, you have not seen any movement because plants are stick to the root, but still they show some movement. Like you have seen the sunflower, it moves towards the sun. If you have seen lotus flower, it opens at sunrise and it closes at night. तो बच्चों प्लांट्स जो है ये ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट इनमें देखने को मिल जाते हैं. जैसे कि सनफ्लावर जो होता है वो क्या करता है, वो सन की तरफ ही मूव करता है. जहाँ जहाँ सन जाता है ये उसकी डायरेक्शन में ही मूव करता है. लोटस का फ्लावर जो होता है, कमल का फूल जो होता है, ये सनराइज जब होती है, सन जब उगता है ये ओपन हो जाता है, और जब सन सेट हो जाता है तो ये क्लोज हो जाता है. तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है. Second, they need food. Living things need food which gives them energy to live and grow. Green plants make their own food with the help of air, water and sunlight through the process of photosynthesis. Human beings and animals eat plants or the flesh of other animals. So the living things need food to grow or to get energy. Green plants also need food. They make their own food with the process of or with the help of sunlight, water, air. It is the process of photosynthesis. Human beings and animals are dependent on plants and other animals. तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं इन्हें जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं. इनका एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें इन्हें एयर, वाटर, सनलाइट चाहिए होती है, जिसके थ्रू ये क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं. थर्ड, दे ब्रीथ. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. Frogs and toads have lungs, but when they are in water, they can breathe through their skin. So all living things are there in the world. They breathe. They need air to breathe to survive. Animals and human beings are the elements which need air or which inhale air through their nose. Fish breathe through their gills. Frogs and toads have lungs, but when they are in water, they breathe through their skin. तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो होते हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इन्हें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं या हम जितने भी एनिमल्स हैं ये नोज़ के थ्रू सांस लेते हैं, और जो फिश होती है ये पानी में रहती हैं तो ये सांस कैसे लेती हैं, ये गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं. फ्रॉग्स जो होते हैं ये अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. जब ये पानी से बाहर होते हैं, जब ये पानी के अंदर होते हैं तो ये अपने स्किन के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. Butterflies have pores open to the air which help them breathe. Air is carried through the body by air tubes called trachea. Plants breathe through small pores on the leaves called stomata. So butterflies also breathe. They breathe through their pores. Even plants also breathe, but they breathe through a small pore which is called stomata. बटरफ्लाइज भी ब्रीथ करती हैं. ठीक है. और जो प्लांट्स होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं. इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्लांट्स में जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, हवा अंदर लेते हैं. फोर्थ, दे रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. So children, reproduction is the process by which living things produce their young ones. Human beings and many animals such as cats, dogs, cows and lions give birth to babies. Birds lays eggs from which young ones hatch out. So like human beings, animals and birds also reproduce. Birds lay eggs, animals reproduce through their babies and human beings also give birth to their babies. तो लिविंग थिंग्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे और
जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, बेबीज़ को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। एनिमल्स भी अपने स्मॉल यंग्स को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। बर्ड्स क्या करती हैं, ये अंडे देती हैं और अंडे से जो बच्चे हैं वो बाहर निकल आते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या बनते हैं, एक अडल्ट बर्ड ये बनते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। सम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस थ्रू देयर रूट्स, स्टेम और लीव्स। इवन प्लांट्स ऑल्सो डू रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। तो बच्चों प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, तो ये भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ये ग्रो करते हैं किससे, सीड से। सीड्स इन्हीं में ही होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो सीड से नया बेबी प्लांट आता है जो कि बड़े प्लांट में ग्रो करता है, डेवलप करता है। फिफ्थ, दे ग्रो। द बेबीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ग्रो विद टाइम टू बिकम adults. A seedling grows into a big plant. So the living things, they reproduce, they grow into a big or a adult human being or animal or a plant. तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ये अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं तो वो बेबीज़ क्या होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं, नहीं, वो भी धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इवन जो आपके सीडलिंग्स होते हैं, जो छोटा प्लांट आप उगाते हो, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो भी बड़ा होता चला जाता है। तो आपने देखा होगा ये जो लिविंग थिंग्स है ये धीरे धीरे क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। 6, दे फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। We feel cold in winter and hot in summer. Animals too can feel hot, cold and pain. Plants also respond to changes around them. For example, the leaves of the touch-me-not plant close when touched. In autumn, the leaves of some trees change colors. So we are living things. So the main characteristics of living thing is that respond. They respond to the change. Whenever we feel hurt, whenever we feel cold, whenever we feel hot, we respond to the change. Even plants also respond to the changes. तो बच्चों हम जो लिविंग थिंग्स होते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चेंज को, जैसे कि कोल्ड है या जैसे कि हॉट है, या कभी कभी हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, पेन होता है, दर्द होता है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने में चेंजेस जो है वो शो करते हैं। जैसे जो टच मी नॉट वाला प्लांट होता है, अगर आप उसे टच कर लेते हो तो आपके टच से वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड देता है, वो अपनी लीव्स को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। 7, दे एक्सक्रीट। Excretion is the process through which animals and plants get rid of waste product. Humans and animals have special organs in the body which helps to get rid of waste, such as the lungs, kidneys and skin. Our kidney takes the waste out of our blood and produce urine. Also, when we sweat, we are actually excreting waste from our skin. Plants get rid of waste through the process of transpiration. So all living things excrete. Excretion is the process by which we excrete. We throw the waste from our body through the excretion or through the excretory system. Human and animal have special organs through which they excrete. Even plants also get rid of the waste through their body through the process of transpiration. तो हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या हम जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। हमारी बॉडी से हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट को बाहर निकालते हैं। जैसे ह्यूमन एंड एनिमल्स का क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गन होता है उनकी बॉडी में जिसके थ्रू जितना भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। इवन प्लांट्स भी जो होते हैं ये भी अपने बॉडी से, अपने पार्ट से ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वेट को, जो भी वेस्ट है उसको ये बाहर निकालते हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू। Now differences between living and non-living things. The table given below shows the difference between the living and non-living things. Living things and non-living things. Living things grow, non-living things do not grow. So living things grow, but have you ever seen a chair growing? No, because they are non-living thing. लिविंग थिंग्स जो होती है वो ग्रो करती है, लेकिन क्या आपने किसी नॉन लिविंग थिंग को ग्रो करते हुए देखा है? क्या आपने किसी चेयर के साइज़ को बढ़ते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, वो ग्रो नहीं करते। लिविंग थिंग्स ही सिर्फ ग्रो करते हैं। वो बेबीज से पहले चिल्ड्रन में जाते हैं, चिल्ड्रन से वो एडल्ट्स में ग्रो करते हैं, फिर वो क्या होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। नाउ सेकंड, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन।
Second difference is living things move. They move on their own. They go to from one place to another place. But non-living thing don't. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं करती जब तक आप उन्हें नहीं हिलाते. थर्ड, लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील द चेंजेस अराउंड देम. सो लिविंग थिंग फील everything. They feel pain, they feel emotions, but non-living thing don't. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो हर चीज़ को फील करती हैं, चाहे वो इमोशन हो या चाहे वो कोई चेंजेस हो या चाहे वो पेन हो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं करते क्योंकि उनमें जान ही नहीं होती. फोर्थ, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. लिविंग थिंग्स नीड एयर बट नॉन लिविंग थिंग डोंट. लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, बट क्या आपने किसी नॉन लिविंग थिंग को सांस लेते देखा है? नहीं. फिफ्थ, लिविंग थिंग्स नीड फूड. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग डोंट. लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, बट नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती. 6, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर बेबीज, देयर यंग वंस, बट नॉन लिविंग थिंग डोंट. लिविंग थिंग्स को आपने देखा होगा वो क्या करते हैं? छोटे छोटे बेबीज पैदा करते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है. नाउ टेक ब्रेक. Focus attention based. We all use many non-living things in our daily life. Complete the following table by looking at the example. Non-living things we use: milk, fruit, water, salt, meat, paper. Where does it come from? Milk come from animals, fruit come from plants, water come from water body or rain, salt come from ocean, meat come from animal, paper come from trees. So you have to mention all these things here. यहाँ पे बच्चों आपको मेंशन करना है जो भी हम नॉन लिविंग थिंग्स अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और कहाँ से हमें ये मिलता है. जैसे कि मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलता है. वाटर हमें वाटर बॉडीज़ जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, रेन हो गया, उनसे मिलता है. सॉल्ट हमें ओशन से मिलता है. मीट हमें एनिमल से मिलता है और पेपर हमें मिलता है ट्रीज से. Now chapter cover up. We find living and non-living things around us. Although living things may look different, they all carry out some similar processes. We call these the characteristics of living things. All living things change, reproduce and excrete. Non-living things do not perform any of life processes. So children, in this chapter we have learned about living and non-living things. We have learned about the difference between living and non-living things and about their characteristics. इस चैप्टर में हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना. नाउ थिंक एंड आंसर बेस्ड ऑन NEP 2020. A. Tick the correct answer. Which one of the following is true about living things? They reproduce, they do not grow, they do not breathe. So the correct answer is they reproduce. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग की. तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. इसका करेक्ट आंसर है दे रिप्रोड्यूस. नाउ सेकंड, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू डैश. ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी फ्लावर. सो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू व्हाट? दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स called stomata. So you will write stomata here. Plants किस तरीके से ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स ब्रीथ करते हैं थ्रू स्टोमेटा, तो आप स्टोमेटा पे टिक करेंगे. थर्ड, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड डैश. ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन. So you have to tell the process of producing young ones or babies. It is called reproduction. आपको बताना है जो प्रोड्यूसिंग का प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं. फोर्थ, फिश ब्रीथ थ्रू डैश. ऑप्शन ए नोज, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी एयर ट्यूब्स. यू हैव टू टेल द पार्ट फ्रॉम विच फिश ब्रीथ. सो द करेक्ट आंसर इज गिल्स.
फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। आपको बताना है फिश जो है वो कैसे ब्रीथ करती हैं। तो वो उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, क्योंकि वो पानी में रहती है, उनकी नोज़ नहीं होती, तो वो गिल्स के थ्रू क्या करती हैं, वो सांस लेती हैं। फिफ्थ, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए सीड्स, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम seeds. They have seeds in fruits. When you dig in the ground, it grows into a new baby plant. Plants जो हैं ये seed से grow करते हैं. Now B, fill in the blanks. All living things need dash to breathe. What they need to breathe? They need air to breathe. You will write air here. Living things को सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, air की. Second, the leaves of the touch-me-not plant dash when touched. The leaves of touch-me-not plant do what? They close when you touch them. So you will write close here. जो touch-me-not plant होता है, छुई मुई का जो plant होता है, वो क्या करता है, जब उसे touch करते हैं वो अपनी leaves को बंद कर लेता है, तो आप यहाँ पे close लिखेंगे. Third, a butterfly breathes through dash. बटरफ्लाई कैसे ब्रीथ करती है, उसकी बॉडी में स्मॉल पोर्स होते हैं, वो उनके थ्रू ब्रीथ करती है. सो यू विल राइट स्मॉल पोर्स हियर. फोर्थ, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड डैश. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स, व्हाट डू यू कॉल इट, यू कॉल इट स्टोमेटा. सो यू विल राइट स्टोमेटा हियर. प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, उनमें भी स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. फिफ्थ, प्लांट्स गेट रीड ऑफ वेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. प्लांट्स का जो वेस्ट थ्रो करने का तरीका होता है, बाहर निकालने का तरीका होता है, वो ट्रांसपीरेशन कहलाता है. नाउ सी, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए, कॉलम बी. You have some options in column A and some options in column B. You have to match the correct option in column B. Like first is sweat. Sweat is the part of excretion. So you will match it with excretion. Now second, gills and lungs. It is a part of organ of breathing. Third, reproduction and breathing. It is the part of life processes. Toads and frogs can breathe through the skin. Fifth, grow from seeds. It is plant. तो यहाँ पे बच्चों आपको कॉलम ए कॉलम बी में दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं. आपको यहाँ पे कॉलम ए में ध्यान से पढ़ना है और इन्हें ऑप्शन कॉलम बी में करेक्ट ऑप्शन से क्या करना है, मिलाना है. जैसे स्वेट जो है ये एक्सक्रीशन का पार्ट है. जब हम एक्सक्रीट करते हैं तो हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है. गिल्स एंड लंग्स जो है ये क्या है, ये ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग है. रिप्रोडक्शन एंड ब्रीथिंग क्या है, ये लाइफ प्रोसेस है. इसके थ्रू लाइफ जो है, न्यू लाइफ जो होती है वो डेवलप होती है. टॉड्स एंड फ्रॉग्स क्या करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन से. ग्रो फ्रॉम सीड्स, सीड से क्या ग्रो होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ आर लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. You have to mention the difference between living things and non-living things. So living things breathe, non-living things don't. Living things need food, non-living things don't. आपको बताना है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस. तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये इनको क्या करते हैं, इनको एयर चाहिए होती है सांस लेने के लिए. नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं चाहिए होती. लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है खाने के लिए, ग्रो करने के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं चाहिए होता. तो आप ये डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सेकंड, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन. सो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट रीड ऑफ वेस्ट. सो यू विल राइट द आंसर हियर. ट्रांसपीरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना वेस्ट जो होता है वो बाहर निकालते हैं. थर्ड, वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड. एक्सप्लेन फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. You have to tell the need of food for living things, and also you have to explain the food habit of living things. So why we need food? Because we need to grow, we need to make our body fit and fine, or we need energy. That's why we need food. We need food to survive. Food habits or living things, we living things or all living things that depends on plant and animals for फूड. लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है. लिविंग थिंग्स को
क्या करना होता है, ग्रो करना होता है। ग्रो करने के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। फूड हैबिट्स क्या होती हैं, तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। फोर्थ, डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव? गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। नो, not all living things move, like plants do not move, but they show some movement when they get something changed in their environment. लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्या ऑल लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, तो नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे नो, प्लांट्स मूव नहीं करते, लेकिन हाँ वो कभी कभी क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, जब उन्हें कुछ अपने आसपास मूवमेंट या चेंजेस शो होते हैं। फिफ्थ, हाउ डू different living organism breathe? You have to tell about the different living organism breathe through. So humans and animals breathe through their nose. Plants breathe through the small pores called stomata, and the frog breathe through lungs when it is outside the water, and when it is in water it breathe through skin, and the fishes breathe through their gills. तो आपको बताना है अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो नाक से सांस लेते हैं, जो प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग्स जो होते हैं अगर वो बाहर हैं, पानी से बाहर, तो लंग्स से सांस लेते हैं, अगर वो पानी के अंदर है तो वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। फिश जो होती हैं पानी में रहती है हमेशा, तो वो अपने गिल से सांस लेती हैं। Out of the box critical thinking. Nowadays many robots have been developed. These robots look like human beings. They walk, talk and even require fuel or electricity to run, just like we require food. Are these robots living things or non-living things? Support your answer with reason. So children, here you have to tell reason why robots are not living things, or you have to mention why they are non-living or living things. Like robots work like us, they need fuel, they need electricity, like we need the food. So you have to tell whether they are living thing or non-living thing. So the answer is the robots are non-living thing because they are made by man. They do not breathe, they do not reproduce, they do not act when they got hurt. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो रोबोट्स होते हैं वो ह्यूमंस की तरह ही काम करते हैं और ह्यूमंस की तरह ही उन्हें फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है काम करने के लिए। तो क्या वो लिविंग थिंग में आएंगे या क्या वो नॉन लिविंग थिंग में आएंगे? तो वो नॉन लिविंग थिंग में आएंगे क्योंकि उन्हें इंसानों ने बनाया है। वो इंसानों की तरह सांस नहीं लेते, वो इंसानों की तरह फील नहीं करते, वो इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस नहीं करते। क्रॉस लिंक्स, physical media development. Though water and soil are non-living things, many life forms are found in them. Make a list of some living things that live either in water or in the soil or underground. So you have seen so many things which lives in water, like fishes, like octopus, like so many water plants and water animals are there which lives in water. So you have to mention some things which lives in water and you have to mention some things which are lives in soil, like fish, octopus, crocodile, crabs, they live in water. And when we talk about soil, earthworms lives in soil, and the rabbits, the mouse lives in underground. They dig the burrow and they live there. आपको बताना है कि वाटर और सॉइल में कौन कौन से चीज़ें या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो पानी में फिश रहती है, ऑक्टोपस रहते हैं, या और जो भी आपको लगते हैं एनिमल्स उसमें रहते हैं, आप उनके नाम मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। सॉइल में कौन कौन से एनिमल्स और कौन कौन से वहाँ पे चीज़ें रहती हैं, तो अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर रहते हैं, और आपने देखा होगा रैबिट्स वगैरह भी कहाँ रहते हैं, वो डिग करके ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड रहते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise.